Chapter 3 Karma Yoga. Arjun speaks to Krishna. Hey Krishna, if you believe that knowledge is superior to action, why are you pushing me to fight and carry out this dreadful action? Please guide me towards the best course of action. Shri Krishna responds, no one can remain inactive even for a moment, for action is an inherent part of our nature. Therefore, perform your duties as action is better than inaction. Without action, you cannot even maintain your own body. Those who do not follow the cycle of creation set in motion are inclined towards sin. He who indulges in sensual pleasures lives a life of vain. He who takes delight in the self alone is satisfied. If you carry out your duties without attachment, you will attain supreme state. Just like Janak, a great man's actions serve as an example for others to follow. Though I have no obligations in these three worlds, I still engage in actions. If I were to refrain from action, others would be discouraged, leading to the world's destruction. My inaction would only cause confusion and devastation. Wise individuals act without attachment and do not disturb the minds of ignorant ones who are attached to their actions. All actions are performed by the modes of nature, but the ignorant believe themselves to be the sole doers. If you surrender all your actions to me, with your mind fixed on me, you will be freed from hope and attachment. Abandon anger and perform your duty without hesitation. Those who follow these teachings are liberated from the bondage of actions. However, those who find faults and are deluded in their knowledge remain enslaved. One should fulfill their own duties without seeking recognition. Death in the pursuit of fulfilling one's duties is better than a life without purpose. At this, Arjun questions, but why should one be compelled to commit sinful acts against their will? Krishna explains, desires arising from passion lead to anger and are considered sinful. Just as fire is hidden by smoke, a mirror is obscured by dust, and an embryo is covered within the womb, similarly, wisdom is veiled by passion. Therefore, control your senses from the very beginning. Overcome the destroyer of wisdom and discrimination, and fulfill your duties by engaging in the fight. Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Jayasi chet karmadate mata buddhi janadana tat kim karmani ghore mam नियोजयसि केशव व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस
स्थितिशरमपि जातु तिष्ठ्यत कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो कर्मणः शरीरे यत्रापि च तेन प्रसिद्धयेन अकर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो भुङ्क्ते तेन एव च। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तद् तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पातास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नान्वाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधयेनम् इह वैरिणम्। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैः विमोहयति येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि अदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। एवं बुद्धिपरं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो
कामरूपं दुरासदम् Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna तीसरा अध्याय कर्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने से लगाव किंतु उन कर्मों की फल की कोई इच्छा ना होना समझाते हैं। वो कहते हैं आत्मा में ही संतुष्ट रहो, प्रकृति कर्म करती है, आत्मा नहीं। अहंकार से मनुष्य अपने को कर्ता समझने लगता है। हमारा शत्रु इच्छा और क्रोध है, इसीलिए दोनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, यदि बुद्धि का मार्ग कर्म से बेहतर है तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कहते हो? मुझे ज्यादा भटका कर नहीं, सिर्फ एक बात कहो जिसे करने से मेरी अधिक से अधिक भलाई हो। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने सदा क्रिया करने वालों के लिए कर्म का मार्ग व चिंतन करने वालों के लिए बुद्धि का मार्ग बताया है। कर्म को ना करने से व्यक्ति कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता। कोई व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न अपने गुणों के कारण मजबूर होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को रोककर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, वे भटके हुए हैं, उनकी बुद्धि गूढ़ है। वे व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को वश में रखकर कर्म करते रहते हैं, वे सही हैं। इसीलिए तेरा कर्तव्य जो नियत है उसे तू कर। कर्म ना करने से कर्म करना कहीं बेहतर है। बिना कर्म किए तेरा शरीर निर्बाध्य नहीं हो सकता। इस संसार में बिना स्वार्थ के कर्म करने वाला मनुष्य बंधन में नहीं बंधता। अन्य सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसीलिए बिना लगाव, बिना आसक्ति, बिना स्वार्थ तू यज्ञ की भावना से कर्म कर। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने प्राणियों और यज्ञ दोनों को उत्पन्न किया था और कहा था, तुम यज्ञ द्वारा फलो फूलो। इस यज्ञ द्वारा तुम अपने मन की आकांक्षाएं पूरी करोगे। यज्ञ से खुश होकर देवता तुम्हें वो सुख देंगे जो तुम चाहते हो। जो व्यक्ति इन सुखों का फल खुद भोगता है और देवताओं को नहीं देता, वो चोर है। जो व्यक्ति कर्म से बचे हुए यज्ञ के प्रसाद को खाते हैं, वे सब पापों से छूट जाते हैं। जो व्यक्ति अपने लिए ही अकेले पकाते हैं और अकेले ही खाते हैं, वो समझो पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मों का मूल ब्रह्म है और ब्रह्म का मूल परमात्मा है। जो व्यक्ति इस सांसारिक चक्र को चलने में सहायता नहीं देता, वो दुष्ट स्वभाव वाला होता है। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ पाप युक्त जीवन बिताता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में लीन, तृप्त व संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्म करना जरूरी नहीं रहता। इसलिए बिना आसक्ति, बिना लगाव के तू कर्म किए जा, क्योंकि ऐसा मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त करता है। जन कल्याण और संसार की व्यवस्था बनाने के लिए भी तुझे कर्म करना चाहिए। जन साधारण ऐसे लोगों का अनुसरण करते हैं। मुझे तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त ना हो, पर फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म छोड़ दूं तो मेरे अनुयायी भी ऐसा ही करेंगे।